Welcome students. So today we are learning the triangle law of vector addition. So basically if you are drawing if this vector as vector OA and another vector with connected to this vector, that is vector AB, and now we have a two vectors, that is vector OA and another one is vector AB. So when we are joining the starting point of first vector, that is O, to the end point of second vector to vector B, so this gives us the resultant vector and this is known as the triangle law of vector addition. तो ये जो वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर था उसका नाम था वेक्टर ओ ए एंड जो सेकंड वेक्टर है वो है ए बी. जब हमने ये थर्ड वेक्टर को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर तक दिखाया है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो इन केस ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, so you can write vector OA plus vector AB is equal to vector OB. तो ये जो वेक्टर OA है, यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर OA था और A to B दिस इज अवर वेक्टर AB एंड ये दो जो वेक्टर है उसे हम जब इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. So the basically the statement for the triangle law of vector addition is, okay, see here, if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction of two sides of triangle taken in order, then their resultant is represented by the third side of triangle drawn in opposite sense from starting point of the first vector to end point of the second vector. So this is known as triangle law of vector addition. So in case of triangle of vector addition, you can see here, this is our first vector and this is our second vector. So this is vector OA, another one is a vector AB, and the line which is joining these two vector, that is vector AB. ये वेक्टर AB है, ये वेक्टर हमारे पास OA है और ये वेक्टर AB है. यहाँ पे जो वेक्टर है ये कौन सा है, OB है. ओके, दिस इज वेक्टर OB. सो दिस इज अवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है इसमें आपको दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी के लेने हैं. लेट्स कंसीडर दिस इज वेक्टर A, let's consider this is vector B, and when we are joining these two vector, so this will give us vector C, and here vector C is equal to vector A plus vector B. So if two vectors describing the same physical quantity, सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी ये दो वेक्टर है हमारे पास A और B, ये दोनों भी फोर्स के ही होने चाहिए या दोनों भी ये जो वेक्टर है वेलोसिटी के होने चाहिए. तो पर्टिकुलरली हमें ये समझना होगा कि ये दो वेक्टर जो है हमारे पास ये सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए. सो हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड हियर इज its starting point and here is its end point of second vector. So when we are joining this line, so this C will gives us the resultant vector. So another, in case of another example, we can show it by, here is a vector P and here is a vector Q. So when you are joining these two vector, so we are showing it by vector R. So vector R is equal to vector P plus vector Q. So this will give us triangle law of vector addition. Okay, so
In case of triangle law of vector addition, you have to just understand we are taking two vector. So here is a vector p and here is a point p and here is a point q. ये जो p पॉइंट है ये है स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट वेक्टर का, और ये जो q है ये है एंड पॉइंट है सेकंड वेक्टर का। और हमारे पास जो दूसरा एक वेक्टर है, लेट्स कंसीडर ये जो वेक्टर है वो है r टू एस, ये आर एस वेक्टर है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं बी से, और जो वेक्टर पी क्यू है उसे हम डिनोट कर रहे हैं ए से। तो जो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास था उस वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट पी था और एंड पॉइंट क्यू था, और जो सेकंड वेक्टर हमारे पास है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आर है और एंड पॉइंट एस है। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं और जो सेकंड वेक्टर है हम उसे बी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर वाज वेक्टर पी क्यू, उसे हमने वेक्टर ए से दिखाया था। जो दूसरा वेक्टर है वो वेक्टर था आर एस, उसे हमने वेक्टर बी से डिनोट किया था। अब ये दो वेक्टर को मैंने कनेक्ट किया है, जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हम दिखाएंगे वेक्टर पी एस से। सो दिस इज नथिंग बट triangle law of vector addition, and here vector c is equal to vector a plus vector b। तो जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब यूज़ करना है, तब आप इस इक्वेशन को, इन केस इफ दे आर आस्किंग यू बी वेक्टर बी, देन यू कैन राइट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। और यदि आपको वेक्टर ए उन्होंने पूछा है तो आपको लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। सो इस तरह से हम इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so in case of triangle law of vector addition, so here we have to understand that the triangle law obeys commutative law। ये जो vector addition is commutative है, okay, we can use this triangle law of vector addition for showing that vector addition is commutative। So here you can say that vector addition is कम्यूटेटिव। सो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है ये दिखाने के लिए हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। सो लेट्स कंसीडर हियर इज अ वेक्टर, सो वेक्टर that is OA and another vector that is vector AB। okay, so vector OA is given by vector P, vector AB that is given by vector Q। So now I am joining O to B point, here we are joining point from O to B, that is vector R। okay, so यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ यूज कर रहे हैं, तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R। so here we can draw another vector that is vector OC, next one is vector C to B। ओके, सो यहाँ पे जो OC है उसे मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ, और जो वेक्टर CB है उसे हम वेक्टर P से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगा, यहाँ से वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R। और जब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में देख रहे हैं, तो वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, वेक्टर Q प्लस वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर R। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में वेक्टर R जो है हमारे राइट हैंड साइड में आया है।
So from that we can say that from equation 1 and 2 we can write vector p plus vector q is equal to vector q plus vector p. So this gives us commutative law. जब वेक्टर p प्लस वेक्टर q है यानी वेक्टर q प्लस वेक्टर p भी है तो इसे ही हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसे क्या कहेंगे हम? कम्यूटेटिव लॉ। ओके, so we can say that triangle law of vector addition gives that कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो इस तरह से हम एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इन सेकंड पॉइंट वी विल राइट वेक्टर एडिशन is associative. Okay, so here vector addition is associative. So for that first we have to draw the diagram. See here, so now we have a vector. First I will write this vector, that is vector OP, and I am showing it by vector A. Now second vector, that is vector PQ, vector PQ. So let's show it by vector B. जो वेक्टर OP है उसे हम वेक्टर A भी कह सकते हैं, जो वेक्टर PQ है उसे हम वेक्टर B भी कह सकते हैं। So the resultant vector I will show it by joining these two vector, that is vector A plus vector B. यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है OQ, और जो OQ का वैल्यू होगा वो क्या होगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B. Now here you can see this vector is vector B. ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर B है। तो वेक्टर B को जब हम यहाँ पे इस तरह से एक वेक्टर निकालेंगे तो ये होगा वेक्टर C होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा R. सो जब हम ये दो वेक्टर ऐड करेंगे, वेक्टर B और वेक्टर C, सो दिस लाइन विल गिव्स अस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और जो नीचे हमारे पास एक वेक्टर होगा वो हम दिखाएंगे वेक्टर R से। सो नाउ सी हियर, यहाँ पे हमारे पास एक था वेक्टर A, दूसरा एक वेक्टर था वेक्टर B, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है हमें क्या मिला है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो नाउ ये तो इजी था, लेकिन ये जो हमने वेक्टर B प्लस वेक्टर C किस तरह से निकाला है? हमारे पास अभी पहला वेक्टर वेक्टर B लेना है हमें, और दूसरा वेक्टर लेना है वेक्टर C। जब इन दोनों का हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार जब एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है वेक्टर B प्लस वेक्टर C. सो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो ये हमें अभी इक्वेशन 1 मिला है। सो नाउ हियर वी कैन राइट वेक्टर R is equal to वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी एक ही वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसे हमने जो वेक्टर A प्लस वेक्टर B से डिनोट किया है, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर प्लस वेक्टर C, जो हमारे पास वेक्टर A प्लस वेक्टर B था यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर है वेक्टर C,
इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, वेक्टर आर। तो जो वेक्टर आर का जो वैल्यू हमें मिला है वो मिला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो एक ही वेक्टर हुआ है अब। और दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर सी है। इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर आर मिलेगा। ओके, एंड सिमिलरली सो लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन मिली है हमें ट्रायंगल ओ क्यू आर में मिले हैं। जब हम ट्रायंगल ओ पी आर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओ पी आर के बारे में, तब हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दिस इज नंबर 2। ये जो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो जब हम इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर आर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सो दिस गिव्स अस एसोसिएटिव लॉ। तो इस तरह से हमें क्या मिला है, एसोसिएटिव लॉ मिला है। ओके, so now let's see next one. So now let's discuss the problem example 2.1. express vector AC in terms of vectors AB and vector CB shown in the following figure. See here. So सबसे important हमें पहले फिगर निकालना है। See here, first vector is vector AB. Next here is vector AC and another is vector CB. Okay, so according to the triangle law of vector addition, अभी हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो जब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं तो हमें मिलेगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, ये अभी हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर हमने जब सी बी किया तब हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए बी मिलेगा। ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव टू बेसिकली फाइंड, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में हमें ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी बी। तो ये हमें अभी आंसर मिला है, ए सी का जो वैल्यू मिला है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी बी। तो क्या किया है हमने यहाँ पे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरह से यूज करते हैं हम, सो दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए सी एंड दिस इज आवर सेकंड वेक्टर। ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए बी होगा। तो इसलिए हमने लिखा है वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। जब हमें ए सी का वैल्यू पूछा है तो हम यहाँ पे प्लस सी बी को के यहाँ आने के बाद ये हो जाएगा माइनस, सॉरी हियर आई हैव टू ड्रॉ द माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला है वेक्टर ए बी okay, vector AB minus vector CB. So let's see once again this one. तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, लिखते समय आपको अच्छी तरह से लिखना है। वेक्टर AC, see here, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB इज इक्वल टू वेक्टर AB है। तो हमें निकालना है वेक्टर AC। तो वेक्टर AC इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर AB minus vector CB. So this gives us triangle law of vector addition. So let's see another example. So consider here is a vector AB, here is a vector BC, and here is a vector AC. So from triangle law of vector addition we have vector AC is equal to vector AB प्लस वेक्टर BC। तो ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इन दोनों का एडिशन हमें वेक्टर AC मिलेगा। सो दिस इज अवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन नेक्स्ट क्लास we are going to solve some problems which are related to the triangle law of vector addition.